Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to the lecture number 13 of Business Mathematics MTH 367. So today we will continue with the chapter number 10, Linear Programming and Introduction. So we start with the last lecture summary. So in the last lecture we started the topic of linear programming. That linear programming, what are the basic concepts of linear programming and what are the objectives of linear programming. After that we studied the graphical solutions, how to find the graphical solution of linear programming problem. After that we studied system of linear inequalities. System of linear inequalities क्या होता है और उसको किस तरह से हम स्टडी करते हैं. After that we studied रीजन ऑफ फीजिबल सॉल्यूशन. उसके बाद हमने कॉर्नर पॉइंट मेथड पढ़ा कि अगर फीजिबल सॉल्यूशन किस तरह फाइंड करते हैं और कॉर्नर पॉइंट मेथड को यूज़ करते हुए हम लीनियर प्रोग्रामिंग के क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करते हैं. सो ऑल इन ऑल वी कवर्ड सेक्शन नंबर 10.1 एंड मोस्ट पार्ट्स ऑफ सेक्शन नंबर 10.2 फ्रॉम द रिकमेंडेड टेक्स्ट. Today's topics. In overall picture we will start with section number 10.2. We will do the remaining part of section 10.2 and cover the section 10.3. So the topics which we will cover today is alternative optimal solution. That's where we will start our topic, today's lecture. After that we will study the situation when we have no feasible solution and unbounded solution scenarios, जहाँ पे unbounded solution space होती है. And after that we will study the applications of linear programming in two type of models. One is the dynamics model and the second is a highway maintenance, which is a transportation model. So if we recall, optimal solution में हम या तो किसी objective function को maximize करते हैं या फिर किसी ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मिनिमाइज करते हैं. तो बेसिकली हमारा ऑब्जेक्टिव होता है कि ऑप्टिमाइज करते हैं किसी भी फंक्शन को और किसी भी सिनेरियो को. अल्टरनेटिव ऑप्टिमल सॉल्यूशन. एन ऑप्टिमल सॉल्यूशन विल ऑलवेज अकर एट कॉर्नर पॉइंट ऑफ फीजिबल रीजन. ऑप्टिमल सॉल्यूशन जो है वो हमेशा फीजिबल सॉल्यूशन के कॉर्नर पॉइंट के ऊपर आता है. So there is a possibility of more than one optimal solutions in linear programming problem. किसी भी linear programming problem में ये possible है कि हमारे पास optimal solution के लिए एक से ज़्यादा possibilities हों. तो alternative optimal solution कब exist करता है? So there are two conditions which needs to be satisfied. So the objective function must be parallel to the constraint which forms an edge or boundary on the feasible region. तो अगर ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो है वो फीजिबल सॉल्यूशन के ऊपर जो हमारा जो जिस कंस्ट्रेंट से हमारे पास ऑप्टिमल पॉइंट्स आ रहे हैं तो उसके पैरेलल होना चाहिए. सेकंड कंडीशन ये है कि द कंस्ट्रेंट मस्ट फॉर्म अ बाउंड्री ऑन द फीजिबल रीजन इन द डायरेक्शन ऑफ ऑप्टिमल मूवमेंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन. और सेकंड कंडीशन ये है कि जो कंस्ट्रेंट है तो वो फिजिबल रीजन के ऊपर एक उसको बाउंड्री बनानी चाहिए जिस डायरेक्शन में ऑप्टिमल सॉल्यूशन आता है ऑब्जेक्टिव फंक्शन था वो होनी चाहिए. एग्जांपल. सो यूज कॉर्नर पॉइंट मेथड टू सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम. सो द प्रॉब्लम इज टू मैक्सिमाइज z is equal to 20x1 plus 15 times x2 subject to the constraints 3x1 plus 4x2 is less than equal to 60, 4x1 plus 3x2 is less than equal to 60, x1 is less than equal to 10 and x2 is less than equal to 12 and x1 by x2 is greater than equal to 0. तो पहली जो चार कंडीशंस हैं ये स्ट्रक्चरल कंस्ट्रेंट्स हैं इफ़ वी रिकॉल अवर लास्ट लेक्चर. और ये जो लास्ट जो कंस्ट्रेंट है 5, ये बेसिकली है हमारी नॉन नेगेटिविटी कंस्ट्रेंट. सो नाउ वी स्टार्ट द सॉल्यूशन.
So we will consider first this structural constraint to find the region of feasible solution. So consider the first equation. 3x1 plus 4x2 is less than equal to. So repeating the steps in the last lecture, we can find that the intercepts are 0 over 20, which is y-intercept, and so intercepts are 0 over 15, which is y-intercept, and 20 over 0, which is x-intercept. And at 0 0 we have 0 is less than equal to 60, which is true. So the origin is included in the half space, which is determined by this inequality. So if we draw this inequality, then in the diagram, here we will have roughly 5, here we will have 10, and here we have 20. So this is our x1 axis and this is our x2 axis. तो जैसा कि हमने लास्ट पेज पे देखा कि हमारे पास y इंटरसेप्ट है 0 over 15, जो कि हमारा ये पॉइंट है, और x इंटरसेप्ट है 20 over 0, जो कि हमारा ये पॉइंट है. So we join these two points. So this is the line which represents 4x1 plus 3x2 is less than equal to 60. तो चूँकि हमने ओरिजिन को जब पुट किया इस इनइक्वालिटी में, तो ओरिजिन को सेटिस्फाई कर रही थी, तो इसका मतलब है कि वो स्पेस, तो एक हाफ स्पेस है जो कि इस के राइट हैंड साइड पे है इस लाइन के, और एक लेफ़्ट साइड पे. तो चूँकि ओरिजिन लेफ़्ट साइड पे है, तो इस कंस्ट्रेंट से हमारे पास जो एरिया आ रहा है वो है बेसिकली जो कि इस तमाम उसमें बाउंडेड है. तो इस कंस्ट्रेंट से जो एरिया आ रहा है, दिस इज बेसिकली द एरिया कंस्ट्रेंट. सो व्हेन यू कंसीडर दिस सेकंड कंस्ट्रेंट, सो दिस इज 4x1 plus 3x2 is less than equal to 60. So then intercepts are 0 over 20 and 15 was 0, and at 0 0 we have 0 is less than equal to 60, which is true. So the half space which is determined by this inequality also on the side of origin. तो हमारे पास x इंटरसेप्ट इस केस में आया है 15 व 0, ये पॉइंट है, और y इंटरसेप्ट है हमारा 20 व 0. सो दिस इज द लाइन, एंड द एरिया डिटरमिन्ड बाय दिस लाइन इज बेसिकली ये तमाम एरिया जो कि इस लाइन से नीचे नीचे आ रहा है और पॉजिटिव एक्स वाई एक्सिस x1 और x2 एक्सिस में है वो कवर हो रहा है. सो नाउ दीज टू कंस्ट्रेंट्स गिव्स यू these two this area, but now there are two further constraints. So one constraint is x1 is less than equal to 10. तो x1 is equal to 10 जो है वो हमारे पास है लाइन जो कि, so x1 is equal to 10 is the line
पैरेलल टू वाई एक्सिस, या जिसको हमने x2 एक्सिस कहा हुआ है इस डायग्राम में। सो x1 इज इक्वल टू 10 हमारी ये स्ट्रेट लाइन होगी। जो कि बेसिकली x2 एक्सिस के पैरेलल है। और हमारे पास एक और कंडीशन थी जो कि थी x2 इज इक्वल टू 12 एंड दिस इज द लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, या जिसको हमने x1 एक्सिस कहा हुआ है इस डायग्राम में, x1 एक्सिस के पैरेलल है। और ये दोनों ओरिजिन को सेटिस्फाई कर रही हैं। अगर हम x1 इज इक्वल टू, अगर बेसिकली इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग कंडीशन देखी जाए तो वह है x1 इज लेस देन इक्वल टू 10 और 0 0 पे ये सेटिस्फाई होगी, इम्प्लाइज 0 0 पे 0 इज लेस देन 10। और दूसरी हमारे पास है x2 इज लेस देन इक्वल टू 10 12, तो ये भी हमारे पास 0 0 पे 0 लेस देन इक्वल टू 12। तो इन दोनों का भी जो हमारे पास रीजन बन रहा है वो इसका इस साइड पे है, यानी ये वाला जो रीजन है ये कंस्ट्रेंट जो है x2 लेस देन इक्वल टू 12 की कॉरेस्पॉन्ड आ रहा है हमारे पास, और x1 लेस देन इक्वल टू 10 के जो कॉरेस्पॉन्ड आएगा हमारे पास वो ये रीजन होगा। बस बेसिकली ये रीजन तमाम भी इसी के अंदर आता है, लेकिन चूंकि हम बाउंडेड, तो अगर इन तमाम पॉइंट्स को देखा जाए तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड एरिया है वो है ये, जो कि इन तमाम कंस्ट्रेंट्स को सेटिस्फाई कर रहा है। दिस इज द एरिया जो कि जिसमें x1 भी पॉजिटिव है और x2 भी पॉजिटिव है। So if we find out how many corner points we have in this area, so basically we have here 5 corner points. एक हमारे पास ये corner point है, एक this is our second corner point, this is third corner point, this is fourth and this is fifth, यहाँ पे 12 है। तो ये 5 पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर हम फीजिबल सॉल्यूशन को फाइंड करना है, या ऑप्टिमल सॉल्यूशन यानी मैक्सिमम को हमने फाइंड करना है। सो वी कैन समराइज द वैल्यूज ऑफ, सो यूजिंग द मेथड इन द लास्ट एग्जांपल। सो इफ यू रिकॉल कि ये जो बाहर वाली लाइन है ये रिप्रेजेंट कर रही है 3x1 प्लस 4x2 इज लेस देन इक्वल टू 60, या ये लाइन जो है इक्वल टू 60 है, और ये जो अंदर वाली लाइन है ये है 4x1 प्लस 3x2 इज लेस देन इक्वल टू 60। तो इन कॉर्नर पॉइंट्स को बेसिकली रिफाइन करने के लिए हमें इन इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना होगा। जैसे कि हमारे पास ये जो पॉइंट है ये है so let's give them the names. So we give this name B, this is C, this is D, this is E and this is has the name F. और ये जो हमारा ओरिजिन है इसको हम A कहते हैं। तो हमारे पास पॉइंट F हमें पता है, पॉइंट B भी हमें पता है, सिर्फ 3 ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि अननोन हैं। तो अगर देखा जाए तो हमारा ये जो पॉइंट है E, तो ये कहाँ पे लाई करता है, ये बेसिकली लाई करता है इस पे जो लाइन है, और दिस इज़ द लाइन x1 इज इक्वल टू 10, और ये जो हमारे पास लाइन है दिस इज x2 इज इक्वल टू 12। तो x1 इज इक्वल टू 10 लाइन के ऊपर हमारा ये पॉइंट जिस लाइन के साथ इंटरसेक्ट कर रहा है इस पॉइंट के ऊपर, उसकी इक्वेशन है 4x1 प्लस 3x2 इज इक्वल टू 60। तो फॉर एग्जांपल for point E, what we do, we solve
x1 is equal to 10 and 4x1 plus 3x2 is equal to 60, and of course since x1 is 10, so 40 plus 3x2 is equal to 60. This gives us 3x2 is equal to 20, and x2 is something which is 20 by 3. So that's basically how you find the coordinates. So E के जो coordinates हैं, E is the point 10 over 20 by 3. So similarly हमारा जो point है D, इसको ये जो है वो लाई करता है, क्योंकि दोनों लाइनें हैं 4x1 plus 3x2 is equal to 60 और 3x1 plus 4x2 is equal to 60 इनके इंटरसेक्शन पे, तो इसको भी हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करके इसकी वैल्यू को हम फाइंड कर सकते हैं. तो पॉइंट डी हमारे पास है कि so for the point D we need to solve for D. We solve 4x1 plus 3x2 is equal to 60 and 3x1 plus 4x2 is equal to 60. So when you basically solve these, what you get is the point. After solving, you get D to be the 60 by 7 and 60 by 7. And for C, solve x2 is equal to 12 and so 3x1 plus 4x2 is equal to 60. तो x2 की वैल्यू अगर आप 12 पुट करेंगे तो आपके पास 3x1 आ जाएगा 4 plus 12 is equal to 60. तो 3x1 आपके पास आ जाएगा बेसिकली 12 और x1 हो जाएगा 4. So C is the point 4 and 12. So now we have basically this 6 corner points. A is 0 0, your point F is 0 10 was 0 and your point B is 0 or 12. So these are the points which are corners of the region of feasible solution. So if we evaluate the value of z in the objective function, then we get these values of, so in this small table, if we have here corner point and here we have the value of z is equal to 20x1 plus 15x2, then we can see that at the point 0 0, which is A, we have z is equal to 0 0 और डायग्राम में भी हम देख रहे हैं कि a के ऊपर z की वैल्यू 0 है. तो एट द पॉइंट B, जो कि हमारा पॉइंट है 0 और 12, तो z की वैल्यू जो है वो है हमारे पास 180. And you can also see in the diagram that the value of z is 180 here. And at the point C, which is point 4 or 12, उसके ऊपर z की वैल्यू है, so the value of z here is 260. And at the point D, जिस जो है हमारे पास 60 by 7 व 60 by 7, जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं, इस पे है वैल्यू 300 और है फिर हमारे पास पॉइंट E, जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 10 और 20 by 3. तो यहाँ पे भी z की जो वैल्यू है वो है 300 और जो हमारे पास है पॉइंट F, जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 10 व 0, तो यहाँ पे z की वैल्यू है 200. सो व्हाट वी कैन सी कि हमारे पास ऐसे दो पॉइंट्स हैं
डी और ई जहाँ पे जो जेड की वैल्यू है वो है मैक्सिमम। तो हमारे पास अल्टरनेटिव ऑप्टिमल सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है। सो वी हैव alternative optimal solution here, and so we have optimal solution at D and E. So in fact any point along the line DE will give this optimal solution. तो हमारे पास ये जो लाइन है along DE ये ऑप्टिमल सोल्यूशन देगी। उसकी रीज़न क्या थी, हमने कहा था कि कब ऑप्टिमल सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है कि both the condition for alternative optimal solutions were satisfied in this example। तो हमने जो कंडीशन डिस्कस की थी शुरू में कि ऑप्टिमल सॉल्यूशन एग्जिस्ट कब करेगा, जिसमें ये दो हमने कंडीशन स्टेट की थी, तो वो दोनों सेटिस्फाई कर रही हैं। सो बोथ द कंडीशंस फॉर अल्टरनेटिव ऑप्टिमल सॉल्यूशंस आर सेटिस्फाइड इन दिस एग्जांपल। ऑब्जेक्टिव फंक्शन वाज पैरेलल टू द कंस्ट्रेंट ट्रू। तो ये हमारी पहली कंडीशन थी कि हमारा जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो पैरेलल टू कंस्ट्रेंट टू है। तो अगर आप इफ़ यू रिमेंबर हाउ टू फाइंड द स्लोप, तो दोनों फंक्शन पैरेलल लाइंस कब होती हैं, दो जब उनका स्लोप सेम हो। तो जो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है 20x1 + 15x2 और 4x1 + 3x2 जो कि हमारी डी ई यहाँ पे हमारी डी और ई जो जिस लाइन पे आ रहे हैं वो लाइन जो है हमारे ऑब्जेक्टिव फंक्शन के पैरेलल की जो लाइन आएगी उसके बिल्कुल पैरेलल है। और सेकंड कंडीशन थी द कंस्ट्रेंट 2 वाज अ बाउंड्री लाइन इन द डायरेक्शन ऑफ द ऑप्टिमल मूवमेंट ऑफ बाइजेक्टिव ऑब्जेक्टिव फंक्शन। और कंस्ट्रेंट 2 में हमने कहा था कि जिस बाउंड्री लाइन के ऊपर हमारे पास ऑप्टिमल सॉल्यूशंस आते हैं तो वो जो है जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन की ऑप्टिमल मूवमेंट होती है, यानी जिस साइड पे ऑब्जेक्टिव फंक्शन बढ़ रहा होता है तो उस साइड के बेसिकली जो डायरेक्शन उस लाइन की होती है वो उसी साइड के ऊपर होती है जिस डायरेक्शन में हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन बढ़ रहा है। तो हम बेसिकली देख रहे हैं इस ग्राफ से कि हम अगर ओरिजिन के करीब हैं तो हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन कम है, और जैसे जैसे हम इस साइड पे बढ़ रहे हैं यानी ये जो लाइन है हमारी जो कि बेसिकली पैरेलल है ऑब्जेक्टिव फंक्शन की, तो हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो है वो इस साइड पे जैसे जैसे हम जा रहे हैं तो जैसे जैसे हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू भी बढ़ रही है। तो जो लाइन है बेसिकली उसी साइड पे आ रही है जिस साइड पे ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू बढ़ रही है। तो अल्टरनेटिव ऑप्टिमल सॉल्यूशन की दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं यहाँ पे। सो दैट्स वाई द अल्टरनेटिव ऑप्टिमल सॉल्यूशन एग्जिस्ट अंडर सर्टेन कंडीशंस एंड that's how it appears in example, and that's how it appears in example. No feasible solution. So the system of constraints in a linear programming problem may have no points which satisfy all constraints. यानी ऐसा भी हो सकता है कि हमारे पास जो feasible solution हो वो एग्जिस्ट ही ना करे, ऐसी कंस्ट्रेंट हो कि हमारे पास जो कोई भी पॉइंट उन तमाम कंस्ट्रेंट्स को सेटिस्फाई ना करे। So in such cases there are no points in the solution set, and hence a linear programming problem is said to have no feasible solution. So for example there is a possibility कि आपकी जो एक constraint है उसका जो solution है वो ये साइड हो, और जो आपके पास दूसरी constraint है वो इस साइड को सेटिस्फाई कर रही हो। तो बेसिकली एक जो कंस्ट्रेंट है फॉर एग्जांपल वो है लेस देन इक्वल टू टाइप की, और दूसरा जो है वो कंस्ट्रेंट है वो ग्रेटर देन इक्वल टू टाइप की। सो दिस इज एन एग्जांपल वेयर वी हैव नो feasible solution. So one is sort of greater than equal to constraint and this one is sort of less than equal to constraint. So there is a possibility that we have unbounded solution. So for example in this figure हमारे पास हो सकता है कि हमारा ये रीजन जो है वो आ जाए feasible region। अगर हमारा
फिजिबल रीजन ये हो, यानी जो कंस्ट्रेंट्स हैं ये तमाम जो हैं वो ग्रेटर देन इक्वल टाइप की हैं दोनों कंस्ट्रेंट्स। सो इन दी अबव फिगर the constraints are of the type greater than equal to the resulting solution space extending outward। इसके अंदर हमारे पास जो सोल्यूशन है वो बिल्कुल बाउंडेड नहीं है। So applications of linear programming problems. So first is the diet mix model. The classical diet mix problem involves determining the item which should be included in the meal so as to minimize the cost of the meal and satisfying certain nutritional requirements. तो डाइट मिक्स प्रॉब्लम जो होता है ग़ज़ाई माहिरीन यूजुअली इसको यूज़ करते हैं और उसके अंदर दो चीज़ें होती हैं जो कि ख़ास तौर पे जहन में रखी जाती हैं। एक तो ये है कि जो कॉस्ट है मील की या खाने की वो कम से कम रखी जाए, और दूसरे ये है कि वो एक ख़ास जो आपकी डेली रिक्वायरमेंट है विटामिन्स की या जो आपकी ग़ज़ाई ज़रूरत है डेली उसको भी पूरा किया जाए। सो दैट्स वाई दिस मॉडल इज़ कॉल्ड डाइट मिक्स मॉडल, that you have to mix your diet accordingly so as to minimize the cost and have at least number of nutritional requirements satisfied. So let's do an example which illustrates the process. So a dietitian is planning the menu for the evening meal at a university dining hall. The three main items will be served, all having different nutritional content, and the dietitian is interested in providing at least the minimum daily requirement of each of the three vitamins in this one meal. So the following table summarizes the vitamin content per ounce of each type of food, the cost per ounce of each food, and the minimum daily requirement of the three vitamins. And any combination of the three foods may be selected as long as the total serving size is at least 9 ounces. तो इस सवाल को समझने के लिए जो पॉइंट्स हैं उनको समझना काफ़ी ज़रूरी है। तो पहला पॉइंट ये है कि एक इवनिंग मील में एक डाइटिशियन जो है उसके लिए प्लानिंग कर रहा है मेन्यू की। तो 3 आइटम जो हैं वो सर्व होंगे और तीनों की जो न्यूट्रिशनल कंटेंट है वो डिफरेंट है, यानी तीनों के अंदर जो विटामिन्स हैं वो डिफरेंट टाइप के विटामिन्स हैं। तो जो डाइटिशियन है वो चाहता है कि इस तरह का मील प्रोवाइड किया जाए कि हर विटामिन की जो मिनिमम ग़ज़ाई दिन में ज़रूरत होती है या एक खाने में ज़रूरत होती है वो पूरी हो जाए। तो एक टेबल गिवन है जो कि बेसिकली समराइज़ करता है कि पर आउंस हर एक फूड में कितना विटामिन शामिल हैं, किस मिकदार में, और हर एक जो टाइप ऑफ फूड है जैसे कि हमने मेंशन किया है कि 3 टाइप का फूड है उसमें जो कॉस्ट है उसकी कितनी है पर आउंस उस फूड की, और तीसरी रिक्वायरमेंट जो गिवन है वो है कि जिसमें विटामिन्स जो तीनों विटामिन्स हैं इनकी जो मिनिमम डेली रिक्वायरमेंट है वो क्या है, यानी एक दिन में कितने विटामिन्स उस टाइप के इस्तेमाल होने चाहिए या बॉडी को ज़रूरत होते हैं। तो ये 3 चीज़ें टेबल के अंदर समराइज़ की गई हैं। तो बेसिकली और लास्ट कंडीशन ये है कि कोई से भी जो 3 फूड्स हैं उसको सेलेक्ट किया जा सकता है, यहाँ तक कि कम से कम जो आप सर्व कर रहे हैं वो 9 आउंसेस से ज़्यादा है, यानी जो मील सर्व किया जा रहा है वहाँ पे वो
9 ounces से ज़्यादा है। So here is the table which summarizes everything which we are requiring. So there are 3 type of foods, 1 2 3, and there are 3 type of vitamins. Let's say 1 2 3. तो फूड 1 के अंदर जो है 50 मिलीग्राम जो होता है वो विटामिन 1 होता है, 20 मिलीग्राम जो है वो विटामिन 2 है, और 10 मिलीग्राम जो है वो विटामिन 3 है पर आउंस। और फूड 1 की जो कॉस्ट है पर आउंस वो है $0.1। इसी तरह फूड 2 के लिए हमारे पास जो है तो 30 मिलीग्राम उसमें विटामिन 1 की मिकदार है, 10 मिलीग्राम विटामिन 2 की मिकदार है, और 50 मिलीग्राम विटामिन 3 की मिकदार है पर आउंस। और जो फूड नंबर 2 की कॉस्ट है वो है $0.15 पर आउंस। इसी तरह जो फूड 3 है उसमें हमारे पास 20 मिलीग्राम जो है वो विटामिन 1 की मिकदार है, 30 मिलीग्राम विटामिन 2 की मिकदार है, और 20 मिलीग्राम जो है वो विटामिन 3 की मिकदार है पर आउंस। और $0.12 पर आउंस जो है वो फूड 3 की प्राइस है। तो मिनिमम डेली रिक्वायरमेंट जो है वो विटामिन 1 की जो है वो 290 मिलीग्राम है, विटामिन 2 की जो है वो 200 मिलीग्राम है, और विटामिन 3 की जो है वो 210 मिलीग्राम है। So we need to model this question into a linear programming model. So what is the problem basically to which we are solving? So the problem is to determine the number of ounces of each food to be included in the meal. तो बेसिकली हमने ये फाइंड करना है कि नंबर ऑफ आउंसेस हर मील की कितनी इंक्लूड की जाएगी, हमारी कॉस्ट मिनिमम हो और हमारे मिनिमम विटामिन की जो डेली रिक्वायरमेंट है वो भी सेटिस्फाई हो जाए। एंड द ऑब्जेक्टिव इज़ टू मिनिमाइज द कॉस्ट ऑफ ईच मील सब्जेक्ट टू सेटिस्फाइंग मिनिमम डेली रिक्वायरमेंट्स of the 3 vitamins as well as the restriction on minimum serving size. और हमारा बेसिकली जो ऑब्जेक्टिव है वो है कि कॉस्ट को मिनिमाइज़ किया जाए, और उसके लिए जो कंस्ट्रेंट है एक तो ये है कि हमारी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए विटामिन्स की, और दूसरा ये है कि हम एक ख़ास नंबर का जो साइज़ है उसको मस्ट सर्व करें। जिस तरह के सर्विंग साइज़ मिनिमम 9 ग्राम, जो कि ऐसी स्लाइड पे जो लास्ट कंडीशन है कि मिनिमम सर्विंग साइज़ मस्ट बी 9 ounces. So the formulation. So let xj equal the number of ounces included of each food. तो हम सपोज करते हैं कि जो xj है ये बराबर है जो फूड j के नंबर ऑफ आउंसेस हमने मील में इंक्लूड करने। तो चूँकि ऑब्जेक्टिव है वो कॉस्ट को मिनिमाइज करना है, तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो है वो कॉस्ट को रिप्रेजेंट करेगा। सो स्टेटेड इन डॉलर्स द टोटल कॉस्ट इक्वल्स द सम ऑफ द कॉस्ट ऑफ द 3 आइटम्स। और हमारे पास जो 3 आइटम्स हैं उस पर जो कॉस्ट आएगी वो ये होगी, क्योंकि 0.10 जो है वो 1 आउंस की कॉस्ट है फूड 1 की, 0.15 जो है ये 1 आउंस की कॉस्ट है फूड 2 की, और 0.12 जो है ये 1 आउंस की कॉस्ट है फूड 3 की। So this is our objective function. So the constraints for each vitamin will have the form milligrams of vitamin intake is greater than equal to minimum daily requirement. तो हर एक आइटम के लिए हम इस तरह की इनटेक लेंगे कि उसके मिनिमम डेली रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई हो जाए, यानी वो इनटेक जो है वो मिनिमम रिक्वायरमेंट से ज़्यादा हो। और milligrams from food 1 plus milligrams from food 2 plus milligrams from food 3 is greater than equal to minimum daily requirement. यानी हर एक अगर कोई एक आइटम हम ले लें, यानी एक विटामिन हम ले लें, तो फूड 1 प्लस फूड 2 और फूड 3 से हम इतने मिलीग्राम ऐड करेंगे उस विटामिन के कि हमारी मिनिमम डेली रिक्वायरमेंट जो उस विटामिन की है वो पूरी हो जाए। So the constraints are respectively given below. तो विटामिन 1 के लिए अगर हम देखें तो हमारे पास 50 मिलीग्राम
जो है वो फूड 1 में है, 30 मिलीग्राम जो है वो फूड 2 में है और 20 मिलीग्राम जो है वो फूड 3 में है। तो बेसिकली हमारी जो रिक्वायरमेंट होगी वो होगी 50x1 प्लस 30x2 प्लस 20x3 is greater than equal to 290. So this is the requirement for vitamin 1, क्योंकि हमें 50 मिलीग्राम पर आउंस फूड 1 में मिलता है, 30 मिलीग्राम फूड 2 में मिलता है और 20 मिलीग्राम फूड 3 में मिलता है। तो बेसिकली ये सेटिस्फाई करने के लिए हमारे पास जो हमारी मिनिमम डेली रिक्वायरमेंट है वो विटामिन 1 की वो 290 मिलीग्राम है। सो दैट्स वाई जो विटामिन 1 की कंस्ट्रेंट है वो ये होगी 50x1 प्लस 30x2 प्लस 20x3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 290। विटामिन 2 के लिए सिमिलरली हम देखेंगे कि हमारे पास हर एक आइटम में पर आउंस कितनी मिलीग्राम है और उसके बाद हमारी जो मिनिमम डेली रिक्वायरमेंट है वो 200 मिलीग्राम है। तो कंडीशन होगी 20x1 प्लस 10x2 प्लस 30x3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 200। और हमारे पास जो फर्दर कंडीशन होगी विटामिन 3 की वो भी इसी तरह से आएगी 10x1 प्लस 50x2 प्लस 20x3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 210। The restriction that the serving size be at least 9 ounces is stated as follows. हमने जो लास्ट कंस्ट्रेंट थी, जो लास्ट स्लाइड के ऊपर हमारे पास जो स्लाइड पे हमारे पास लास्ट स्टेटमेंट है, इसमें यह है कि the combination of 3 foods may be selected as long as the total serving size is at least 9 ounces. तो यहाँ से हमारे पास ये जो लास्ट कंडीशन है ये आ जाएगी कि x1 प्लस x2 प्लस x3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 9 ounces. This is the basically constraints come from the last part of the question. तो कंप्लीट फार्मूलेशन हमारे पास क्या होगी कि मिनिमाइज z इज इक्वल टू 0.1x1 प्लस 0.15x2 प्लस 0.12x3 subject to the constraints 50x1 plus 30x2 plus 20x3 is greater than equal to 290, 20x1 plus 10x2 plus 30x3 is greater than equal to 200, 10x1 plus 50x2 plus 20x3 is greater than equal to 210, and further x1 plus x2 plus x3 is greater than equal to 9। और चूँकि ये जो हमारे पास हमने शुरू में एक्स जे स्पेसिफाई किया था वो था कि नंबर ऑफ आउंसेस इंक्लूडेड ऑफ फूड जे, तो चूंकि नंबर नेगेटिव नहीं हो सकता जो कि हम इंक्लूड कर रहे हैं हर फूड के, तो तमाम ये जो वेरिएबल हैं x1 x2 और x3 ये पॉजिटिव होंगे। सो दिस इज द दीज आर स्ट्रक्चरल कंस्ट्रेंट्स एंड दिस इज नॉन नेगेटिविटी कंस्ट्रेंट। So this was how to basically formulate the diet mix problem. So we won't be studying the solution because we have set कि corner point method जो है वो सिर्फ 2 variables के लिए और 2 dimension के अंदर use हो सकता है। To solve such problems we will do some solution in the coming lectures. Some methods which will enable us to solve these sorts of questions. So our next topic is transportation model. Transportation models are possibly the most widely used linear programming models. Who basically spend a lot of money on this? Oil companies commit tremendous resources to the implementation of such models. So the classic example of a transportation problem involves the shipment of some homogeneous commodity from m sources of supply or origins to n points of demand or destinations. So by homogeneous we mean that there are no significant differences in the quality of the item provided by the different sources of supply. The item characteristics are essentially the same. So that's also what we mean by the homogeneous. तो ट्रांसपोर्टेशन मॉडल जो है वो लीनियर प्रोग्रामिंग में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला मॉडल है।
सबसे ज़्यादा जो मॉडल यूज़ होते हैं उनमें से एक है। तो मुख्तलिफ़ जो ऑयल कंपनी हैं वो काफ़ी ज़्यादा पैसा खर्च करती हैं कि इस टाइप के मॉडल को इम्प्लीमेंट किया जाए, क्योंकि इससे उनकी जो मुनाफा है वो काफ़ी बढ़ जाता है। तो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में बेसिकली होता है कि कोई शिपमेंट है, तो शिपमेंट चूँकि मुख्तलिफ़ जगहों से किसी एक कंपनी की शिप हो सकती है, तो अज्यूम करते हैं कि हमारे पास m ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ से हम आइटम्स को शिप करते हैं, और फिर यानी n पॉइंट्स ऑफ ओरिजिन हैं या सप्लाई के पॉइंट्स हैं, और सिमिलरली हमारे पास n ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पे उस आइटम को डिलीवर किया जाता है। तो n जो पॉइंट्स है वो आइटम डिमांड जहाँ पे है, n पॉइंट्स ऑफ डिमांड या फिर डेस्टिनेशंस है हमारे पास। So by homogeneous we mean that there are no significant differences in the quality of the item provided by the different sources of supply। यानी कि homogeneous का मतलब ये है कि हर एक सोर्स से जो आइटम सप्लाई हो रहा है उसकी क्वालिटी सेम है और उसकी खसूसियात भी जो है बेसिकली वो सेम है। An example which is about a highway maintenance. So a medium-sized city has two locations in the city at which salt and sand stockpiles are maintained for use during winter icing and snowstorms. So during a storm, salt and sand are distributed from these two locations to 4 different city zones. Occasionally, additional salt and sand are needed. However, it is usually possible to get additional supplies during a storm since they are stockpiled at a central location some distance outside the city. So city officials hope that there will not be back-to-back storms. So the Director of Public Works is interested in determining the minimum cost of allocating salt and sand supplies during a storm. And the following table summarizes the cost of supply of one ton of salt or sand from each stockpile to each city zone. So in addition, stockpile capacities and normal levels of demand for each zone are indicated in tons. So सवाल है हमारे पास कि हाईवे की मेंटेनेंस का क्वेश्चन है। तो बाहर के मुल्कों में जब हमारा कोई स्टॉर्म आती है या फिर कोई बर्फ़बारी होती है तो सड़कों को मेंटेन रखने के लिए वहाँ पे नमक डाला जाता है और रेत डाली जाती है ताकि सड़कें मेंटेन रहें। उस बर्फ़ के ऊपर नमक या फिर रेत को डाला जाता है ताकि वो मेंटेनेंस उसकी बरकरार रहे और उसके ऊपर गाड़ी जो चलाना है वो भी आसान रहे। तो स्टॉर्म के दौरान जो है 2 मुख्तलिफ़ जगह हैं जहाँ से रेत और नमक को उस सिटी के अंदर 4 मुख्तलिफ़ जगहों के ऊपर भेजा जाता है। सो देयर आर 2 पॉइंट्स ऑफ सप्लाई एंड 4 पॉइंट्स ऑफ डिमांड। और कभी कभी ऐसे भी होता है कि एडिशनल जो है वो रेत और नमक की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन यूजुअली पॉसिबल नहीं होता है कि उसको हासिल किया जाए क्योंकि जो बड़ा ज़ख़ीरा होता है नमक और रेत का वो सिटी से बाहर किसी जगह पे बनाया जाता है। तो वहाँ से स्टॉर्म के अंदर और स्नो के अंदर कुछ लाना पॉसिबल या नामुमकिन होता है। पॉसिबल नहीं होता, यहाँ पर बहुत मुश्किल होता है। और तो जो सिटी ऑफिशियल्स हैं उनकी होप होती है कि जो स्टॉर्म है वो ज़्यादा दफ़ा नहीं आएगी, एक आध बार आएगी और इतनी बार आएगी कि उनके पास जो मुख्तलिफ़ पॉइंट्स पे सिटी के अंदर जो ज़ख़ीरा पड़ा हुआ है नमक और रेत का वो काफ़ी होगा। तो जो डायरेक्टर है पब्लिक वर्क्स का वो चाहता है कि वो जो मिनिमम कॉस्ट है एलोकेशन की जो नमक और रेत की है ड्यूरिंग द स्टॉर्म उसको फाइंड किया जाए। तो जो टेबल है वो बेसिकली कॉस्ट को समराइज़ कर रहा है कि किसी एक पॉइंट से किसी एक ज़ोन के अंदर जो 1 टन सप्लाई करने का जो ख़र्चा है वो कितना है। और इसके अलावा चूँकि किसी ख़ास पॉइंट के ऊपर एक ख़ास कैपेसिटी में भी आप जो नमक और रेत है उसको स्टॉक कर सकते हैं, तो उसको भी वो स्पेसिफाई कर रहा है कि वो कितना है। और जो नॉर्मली आपके पास डिमांड होती है मुख्तलिफ़ वेदर के अंदर वो भी उसको पता है कि हर एक ज़ोन के अंदर जब इस तरह की सूरत हाल आएगी तो उसकी डिमांड कितनी होगी।
So the following summarizes the given table in the slide summarizes all the given information. तो हमारे पास क्या है, there are 4 zones where you need to supply and there are 2 zones which are the origin, point of origin, and from where you supply the and where you basically store your sand and salt. तो अगर इस टेबल को देखा जाए तो बेसिकली जो स्टॉक पाइल 1 है वहाँ से जोन 1 तक जो है वो जो ख़र्च है वो आता है $2। स्टॉक पाइल 1 से जोन 2 तक जो ख़र्च है वो $3 का है और स्टॉक पाइल 1 से जोन 3 तक का जो ख़र्चा है वो $1.5 का है और जो स्टॉक पाइल 1 से जोन 4 तक जो ट्रांसपोर्टेशन का ख़र्चा है वो है $2.5 का, यानी $2.5 का। और मैक्सिमम जो सप्लाई हो सकती है वो स्टॉक पाइल 1 में से वो है 900 टन्स, क्योंकि 900 टन्स वहाँ पे पड़ा हुआ है। और ये जो ख़र्चा है ये ख़र्चा बेसिकली है कि पर टन सप्लाई करने का कितना ख़र्चा आएगा स्टॉक पाइल 1 से जोन 1, 2, 3 को सप्लाई करने का। और मैक्सिमम जो सप्लाई वहाँ से हो सकती है वो है 900 टन। तो स्टॉक पाइल 2 जो है वो है वहाँ से जोन 1 तक का जो ख़र्चा है वो $4 है पर टन, जोन 2 तक का $3.5 है पर टन और जोन 3 तक का जो है वो $2.5 है पर टन और जोन 4 का जो है वो है $3 पर टन। जो टोटल सप्लाई पॉसिबल है स्टॉक पाइल 2 से वो है 750 टन्स। तो हर एक जोन में मैक्सिमम जो है वो डिमांड जो है वो कितनी है। तो जोन 1 में जो डिमांड इन टन्स है वो 300 टन्स है और जोन 2 में 450 टन्स है, जोन 3 में 500 टन्स है और जोन 4 में 350 टन्स है। So now we start the solution of the given problem. So solution. So in formulating the linear programming model for this problem, there are 8 decisions to make that how many tons should be shipped from each stockpile to each zone. तो basically यहाँ पे 8 डिसीजन हमने फाइंड करने हैं। It means that we need 8 variables to find the required solution, क्योंकि हमने हर एक स्टॉक पाइल से हर जोन को एक ख़ास मिकदार ही शिप करेंगे तो हमारे पास मिनिमम जो कॉस्ट है वो आएगी। हम बेसिकली कॉस्ट जो है उसको मिनिमाइज़ करना चाहते हैं। So there are 8 decision needs to be made, so there will be 8 variables. So we let xij equal the number of tons supplied from stockpile I to zone j. So there are 4 zones, so j is from 1 to 4 and there are 2 stockpiles, so I is from 1 to 2. So for example x11 किसको represent करेगा? So x11 equals the number of tons supplied by stockpile 1 to zone 1. तो x11 जो वेरिएबल है वो stockpile 1 से zone 1 में जितनी सप्लाई होगी उसको, जितनी नंबर ऑफ टन सप्लाई होगी उसको रिप्रेजेंट करेगा। एंड सिमिलरली x23 जो होगा वो स्टॉक पाइल 2 से जोन 3 में जो सप्लाई है उसको रिप्रेजेंट करेगा। तो ये डबल स्क्रिप्टेड जो वेरिएबल है ये ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देता है। इट कन्वेज मोर इन्फॉर्मेशन देन वेरिएबल्स x1, x2 अप टू x8। वी कैन ऑल्सो नेम देम एज x1 अप टू x8, बट सिंस वी हैव सीन के xij जो है वो नंबर ऑफ टन सप्लाइड फ्रॉम स्टॉक पाइल A टू जोन j है, तो ये हमारे पास बेसिकली ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे रहा है, तो इसलिए हम ये वेरिएबल्स यूज़ करेंगे। So now you are given this definition of decision variables. So the given this definition of decision variables, the total cost of distributing salt and sand has the form given below. तो टोटल जो कॉस्ट होगी वो होगी हमारे पास 2x11, क्योंकि ये स्टॉक पाइल 1 से जो जोन 1 तक ख़र्चा है वो है $2, x12 3x प्लस 3x12 क्योंकि ये जो ख़र्चा है ये है जोन स्टॉक पाइल 1 से जोन 2 तक का जो है वो $3 है, सो 3x12, सो प्लस सिमिलरली 1.5 x13 प्लस 2.5 x14 प्लस 4x21 प्लस 3.5 x22 प्लस 2.5 x23 प्लस 3x24. So this is the objective function that we wish to minimize. क्योंकि ये टोटल कॉस्ट है तो हम कॉस्ट को मिनिमाइज करना चाहते हैं। So what we also know कि स्टॉक पाइल 1 में हमारे पास क्या है 900 टन्स की जमा करने की हमारे पास स्पेस अवेलेबल है। फ्रॉम दिस टेबल
we know that the stockpile 1 has the maximum capacity which is 910 tons. तो x11 plus x12 plus x13 plus x14 is less than equal to 100, क्योंकि जो टोटल सर्व करने की कैपेसिटी है वो हमारे पास 900 से कम है। तो स्टॉक पाइल 1 से जो जोन 1 2 3 4 को सप्लाई जा रही है उनका सम जो है वो लेस देन 900 होगा। तो सिमिलरली जो ये कंस्ट्रेंट होगी जो स्टॉक पाइल 2 के लिए होगी तो टू द ईच जोन ये होगा हमारे पास लेस देन इक्वल टू 750। द फाइनल क्लास ऑफ कंस्ट्रेंट्स शुड गारंटी दैट ईच जोन रिसीव्स द क्वांटिटी डिमांडेड। और जो लास्ट कंस्ट्रेंट है, चूँकि हमें पता है कि हर जोन में क्वांटिटी की डिमांड क्या है, तो वो भी हम हर एक जोन में हमें पता है कि कितनी क्वांटिटी की डिमांड है, तो वो हम बेसिकली स्पेसिफाई कर लेंगे आखिरी कंस्ट्रेंट से। फॉर एग्जांपल फॉर जोन 1 द सम ऑफ द शिपमेंट्स फ्रॉम स्टॉक पाइल 1 एंड स्टॉक पाइल 2 शुड इक्वल 300 टन्स। जैसे कि इस टेबल में हम देख रहे हैं कि 1 और 2 से जो टोटल वहाँ पे शिपमेंट जाएगी उसकी जो डिमांड है जोन 1 में वो 300 होनी चाहिए। सो x11 प्लस x21 इज इक्वल टू 300, दिस इज इन जोन 1। एंड सिमिलरली जो कंस्ट्रेंट हैं वो बाकी के लिए हमारे पास हैं, वो x12 प्लस x22 इज इक्वल टू 450, ये जोन 2 की है। x13 प्लस x23 जो है इज इक्वल टू 500 जोन 3 की है। x14 प्लस x24 इज इक्वल टू 350 जो है ये जोन 4 की है। सो दीज आर द रिक्वायरमेंट्स for each zone. So the complete formulation of the linear programming model is as follows. तो basically जो हमारा question है वो जो अगर completely formulate किया जाए तो वो ये है कि minimize z is equal to 2x11 plus 3x12 plus 1.5x13 plus 2.5x14 plus 4x11 plus 3.5x22 plus 2.5x23 plus 3x24 subject to these constraints. The first constraint is x11 plus x12 plus x13 plus x14 is less than equal to 900, x21 plus x22 plus x23 plus x24 is less than equal to 750, x11 plus x21 is 300, x12 plus x22 is 450, x13 plus x23 is 500, x14 plus x24 is 350। और चूँकि सप्लाई नेगेटिव नहीं हो सकती है, नंबर ऑफ टन्स नेगेटिव नहीं हो सकते हैं, तो ये तमाम वेरिएबल्स हैं 8 ये पॉजिटिव होंगे। सो दिस इज़ रियली द फॉर्मुलेशन ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन मॉडल एंड दिस इज़ द फाइनल फॉर्म ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन मॉडल वी जस्ट डिस्कस्ड। सो लेट्स रिव्यू टुडेज टॉपिक्स कि आज हमने क्या क्या पढ़ा। सो वी फिनिश्ड सेक्शन 10.2 एंड वी आल्सो फिनिश्ड सेक्शन 10.3। उसके बाद हमने अल्टरनेटिव ऑप्टिमल सॉल्यूशंस पढ़े। उसके बाद हमने नो फिजिबल सॉल्यूशन एंड अनबाउंडेड सॉल्यूशंस इन उसको स्टडी किया। और आखिर में हमने 2 मॉडल्स पढ़े एप्लीकेशन ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग में। एक था डायटमिक्स मॉडल और दूसरा था ट्रांसपोर्टेशन मॉडल, और उसके अंदर हमने स्पेसिफिक प्रॉब्लम जो है वो हाईवे मेंटेनेंस का पढ़ा। So in the next lecture we will start the chapter 11. Section 11.1 will be the simplex preliminaries. उसके बाद overview of the simplex method. उसके बाद what are the requirements of simplex method. उसके बाद हम basic feasible solutions पढ़ेंगे और आखिर में definition of feasible solution, basic solution and basic feasible solutions हम करेंगे। So this was all about today's lecture. उम्मीद है कि आज के लेक्चर में आपने लीनियर प्रोग्रामिंग और उसके बाद उसकी एप्लीकेशन में 2 मॉडल्स हैं जिनको आपने समझा होगा और अंडरस्टैंड किया होगा। अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।